ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਨਸਾਈਟਸ ਵਿਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਈਟਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਨ। ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਗਏ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਉਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ, ਕਿ ਕਮ ਬੈਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਜੂਗਾ। ਓਕੇ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਦੇयर ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਲੋਟ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾ ਬੇਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ, ਮਤਲਬ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ। ਦੇयर ਇਜ਼ ਸੋਲਿਡ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਯੂ ਨੋ, ਦੈਟ ਵੇ ਹੀ ਵਾਸ ਇਨ ਰਿਮਾਂਡ ਫॉर ਸੋ ਲੌਂਗ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਵਟ ਆਰ ਹਿਜ਼ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਂਸ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਓਨਲੀ ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਟੈਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਜੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ basically accused in those investigations, right? What he is planning, how he is planning, I don't know. Basically, of course, he has been an ex-CM of Punjab, Congress ਦੇ ਨੇ senior leader ਰਹੇ ਨੇ। He is answerable to the public, he is answerable to the courts of India। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੀਗਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਵੀਜ਼ਾ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਈਡੀ ਆ, CBI ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਡੂ ਦੇ ਸੈਂਡ ਸਮਨਸ, ਡੂ ਦੇ ਆਸਕ ਹਿਮ ਟੂ ਕਮ ਬੈਕ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FI, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਰੀਅਸ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਦੀ ਐਕਿਊਜ਼ੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਕੈਮ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਕੈਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਕਾਲਡ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਤੇ ਲੱਭਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਫਆਈ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ 2 ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ FIR ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਹਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਐਕਿਊਜ਼ੀਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ FIR ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪਏਗੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਓਨਲੀ ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਟੈਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਜੋ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਹੈਲਥ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 26% ਕੇਸਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਫਾਲਸ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਝੂਠਾ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਆਈ ਆ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਬਰਰ, ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਇਨਕਮ ਕਲਾਸ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ 'ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁਡਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਫੇਸ ਲੋਟ ਆਫ ਚੈਲੰਜਸ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੇਵਰ ਸਭ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇੰਪੈਨਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕ੍ਰਾਸ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਹਸਪੀਟਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਵੈਲ ਇਨ ਯੂਰ ਲਾਈਫ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਬਜਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 26%, ਮਤਲਬ 26% ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ,
ਜਦੋਂ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੀਅਸ ਸਾਈਕਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਸੇ ਸਕੀਮ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨਰਸ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਸ, ਡਾਕਟਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਫੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਮ ਹਾਊ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊ ਦੀ, ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ 26% ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਸਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਹੈਲਥ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਜੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਾਰਨ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ, ਇਹ ਇਨਹਿਊਮਨ ਲਾਲਚ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਜ਼ਨ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮੰਨੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇ ਆਰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਟੂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਇਹ ਇਨਹਿਊਮਨ ਲਾਲਚ ਨੇ ਰਾਈਟ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਲਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਓਨਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਰਾਈਟ, ਉਹ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੂ ਆਰ ਐਟ ਅ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਗਰੀਡ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਨੀਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। 4 ਗੱਡੀਆਂ 5ਵੀਂ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਰਾਈਟ, ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਉਹਦਾ? 4 ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ 5ਵੀਂ ਕੋਠੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਦੈਟ? ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਕੀ ਜ਼ਮੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੋਲਣਗੇ? ਅੱਜ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है। देश में पोल्स हो रही हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए, तो क्या होगा? धनखड़ जी आगे जा रहे हैं, ये सुनने में आ रहा है। ये तो ऑलमोस्ट तय है जी राइट। देखो इलेक्टोरल वोटें कितनी है ये कैलकुलेटेड है, ये पब्लिक पोल तो है नहीं, जो दूसरी जनरल असेंबली की पोल्स तो है नहीं, कौन किसको वोट डालेगा। हर कोई पार्टी लाइंस पे वोट डालता है राइट। अ व्हिप इज इशूड, कुछ क्रॉस वोटिंग भी होती है तो, और क्योंकि वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, एनडीए की मेजॉरिटी है अपर लोअर हाउस दोनों में जी, और उनके हारने के चांसेस बहुत ही कम हैं। कोई और देखिए एक बड़े डिसिप्लिन तरीके से बीजेपी चल रही है। इनफैक्ट जब प्रेसिडेंट इलेक्शन भी हुए थे तब तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद एक एमपी को कैसे वोट डालनी है, क्या प्रोसेस है, उसकी पूरी सिमुलेशन कराई थी। अब जेपी नड्डा जी ने करवाई है। तो वो इंश्योर करते हैं कि वहाँ पे कोई क्रॉस वोटिंग या कोई एरर या कुछ गलत लाइन लगने के चांसेस ना लग जाएं, उनको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो उनका वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी का बनना ऑलमोस्ट तय है राइट। एंड आई होप कि जिस तरह से उन्होंने पहले भी अपने प्रीवियस रोल्स चाहे वो प्रोफेशनल थे जब एक लॉयर थे, उसके बाद एज गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, और अब एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक क्वालिफाइड पर्सन है और अच्छे तरीके से हमारे देश को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यही, क्योंकि उनका देखो जो प्रेसिडेंट और हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रूल है, हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी नहीं है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता, हालांकि उनको कुछ डिपार्टमेंट्स, कुछ उनके राइट्स होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ को वो देखते हैं, बट मोर और लेस पॉलिसी ड्रिवन चीज़ें होती हैं। दे आर मोर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आर डेमोक्रेसी राइट। तो वो उस तरीके को एक डिग्निफाइड तरीके से करें, उनकी जो भी स्टेटमेंट होती है वो इंडिया को रिफ्लेक्ट करती है, वो डिग्निफाइड हो, वो लोगों को जोड़ने वाली हो राइट, वो पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हो। आज वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उसके बाद वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, उसके बाद वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। वो जो भी बात बोलें उसमें एक एलिगेंस, उसमें सेंस ऑफ फेयरनेस और डिग्निटी हो, ये बहुत ज़रूरी बात है। अब इस पे मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा डॉक्टर प्रणब मुखर्जी का। ही वॉज अ कांग्रेस लीडर ऑल हिज लाइफ, पर जब वो प्रेसिडेंट बने, जिस डिग्निटी के साथ उन्होंने पार्टी की पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हर बात कही राइट। और उन्होंने हमेशा
गवर्नमेंट के व्यूज़ को सपोर्ट किया, इंडिया को एक बहुत ही एलिगेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया। तो मेरे को लगता है कि वो भी एक रोल मॉडल हो सकते हैं आने वाले, जब क्योंकि अब पार्टी सपोर्टेड यूनानिमस कैंडिडेट्स तो ये है नहीं, तो ये एक रीज़न बनता है कि जब आप वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट बन गए तो तब आपने पार्टी को भूल जाना। जी सर, दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी पे काफ़ी सवाल उठाए गए थे, कुछ लाइसेंस भी रद्द किए गए थे। तभी हमने चर्चा की थी कि जो भी ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व हों या पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हों, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो 11 ऑफिशियल्स को सस्पेंड किया गया सर। देखो, ये जो दिल्ली का जो पॉलिटिक्स है और जो मैनेजमेंट है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस और जो सीएम ऑफिस या डिप्टी सीएम ऑफिस के बीच जो तामझाम चल रहा है, जो हमेशा एक दूसरे की नुक्ताचीनी चल रही है, वो मेरे को लगता है कि हमारी देश की डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी नहीं है। राइट, मेरे को ये लगता है कि समवन एट अ हायर ऑफिस शुड मेक दीज टू ऑफिसेस सिट टुगेदर एंड टेल देम कि यू आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल ऑफ दिल्ली। वहाँ पे आपको पार्टी एजेंडा से ऊपर उठ के काम करना पड़ेगा। हर जगह पे आप ये कोशिश करें कि भाई सीएम इज नॉट डूइंग द राइट थिंग या लेफ्टिनेंट गवर्नर इज नॉट डूइंग द राइट थिंग। तो अगर ये जो ऑफिस जिनको मिलके आपस में काम करना था, अनफॉर्चुनेटली वो ऑपोजिट एंड पे काम कर रहे हैं, और उसमें पिसेगा कौन? दिल्ली की जनता, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली के रेवेन्यू सफ़र होंगे। और आज वही हो रहा है कि क्योंकि एक पार्टी या एक ऑफिस एक पॉलिसी बनाता है, दूसरा ऑफिस उसको रिजेक्ट कर देता है। इससे जो प्रोग्रेस या जो रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है उस पर इम्पैक्ट आ रहा है। सही गलत कौन है हम नहीं जानते, राइट? उतनी हमारे पास एक्सपर्टाइज नहीं है, डेप्थ नहीं है। पर मेरे को ये लगता है कि इस टाइम पे दे शुड कम टुगेदर, एवरीवन शुड बी मोर मैच्योर एंड बिगर, एंड दे शुड इंश्योर कि अगर देखो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो प्रोग्रेस कैसे होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा, मोहल्ला क्लिनिक कैसे चलेंगे, जो भी इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं वो कैसे चलेंगे, राइट? तो ये सारी चीज़ें अब सोचने का टाइम है। जो भी करप्ट ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने इसके अंदर अगर कोई गड़बड़ हुई है उनको पकड़े जाना चाहिए। और वी शुड इंश्योर कि देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी एक चीज़ है। अगर लोगों की पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी, जो भी लोग उस फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहते होंगे, उन्होंने अपने दिमाग में अपने आप दिल्ली के सिनेरियो को समझ के डिस्काउंटिंग शुरू कर दी होगी। आज ये बात हफ्ते 10 दिन में सेटल भी हो जाए, पुरानी पॉलिसी पे भी चली जाए, जो रेवेन्यू बनना था वो नहीं बनना है। हमारे देश का, दिल्ली का तो नुकसान हो चुका है। वो बोलेंगे कल को कोई कुछ बोल देगा, इतना ही पैसा लगाते हैं, करें कि ना करें। अगर कोई जेन्युइन बिजनेसमैन नहीं आएगा तो एंटी सोशल एलिमेंट्स आएंगे, वो अनऑफिशियली लिकर, इलीगली लिकर बनेगी, राइट? बिना लाइसेंस के बेची जाएगी, बूट लैगिंग होगी, दूसरी स्टेट से लिकर आएगी, तो फिर एंड में यही होगा। तो लॉस किसका है? लॉस सिर्फ और सिर्फ आम जनता का है। सर, नेशनल कैपिटल है दिल्ली, और नेशनल कैपिटल में सरकार और एलजी, ये इनका हमेशा से एक आंकड़ा रहा है कि काफ़ी भेदभाव रहे हैं, उनके साथ मतभेद रहे हैं। तो वो मतभेद कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं लगातार, और देश की इमेज पे भी सवाल उठ रहे हैं। यही एग्जैक्टली मैंने सारी बात बोली है कि ये पिछले कुछ टाइम से ये जो 36 का आंकड़ा जो इनका चल रहा है, मैं वही कह रहा हूँ कि अब एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, अल्टीमेटली पीपल शुड स्टार्ट, हम बड़ी जल्दी क्वेश्चन उठा देते हैं जी, उसने धर्म के बारे में ये बोल दिया, वो कर दिया। आज मेरे को लगता है कि सिविक बॉडी को ये बोलना चाहिए कि किसी एक पार्टी का साथ नहीं, या तो बंदा बोलता है ये सही है या सही है, नहीं, ये गलत हो रहा है, ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि हमने कैसे लोग लेके आ रहे हैं, कैसे लोग ऑफिस में बैठे हैं कि जो जनता का नुकसान कर रहे हैं क्योंकि उनके पॉलिटिकल व्यूज या आइडियोलॉजी सेम नहीं है, कैसे लोग हम लेके आ रहे हैं। तो मेरे को लगता है अब इस चीज पे डिस्कशन होनी चाहिए। सर, एक अदाकार हैं भारत के, आमिर खान, काफ़ी मशहूर है, पूरी दुनिया में मशहूर है। उनकी एक फिल्म आ रही है और उस फिल्म का विरोध हो रहा है। कुछ लोग उसको सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं, कुछ लोग अपने तरीके से उसका विरोध कर रहे हैं और ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। देखिए, सांप्रदायिक तरीके से आप उसको कैसे मानते हैं? सांप्रदायिक सर, क्या लोग ये बोल रहे हैं कि वो क्योंकि वो मुस्लिम एक्टर है इसलिए नहीं देखनी है? यहाँ लोग ये बोल रहे हैं कि वो उन्होंने कुछ एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स दी थी उसके कारण बोल रहे हैं। किस कारण से आप इसको सांप्रदायिक बोल रहे हैं? सांप्रदायिक सर, दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों को लेकर मेनली इसका विरोध किया जा रहा है। एक तो ये कि उन्होंने कुछ साल पहले एक बयान दिया था कि भारत सेफ नहीं लग रहा, ये मेरी पत्नी का कहना है। अच्छा। और जिस पत्नी से वो अलग हो चुके हैं। और उसके बाद दूसरा विरोध है जो रिलीजियस माना जा रहा है, जो बहुत कम लोग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक
मुसलमान ने सिख का रोल किया है जो उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। हालांकि जो सिख कम्युनिटी की सबसे बड़ी संस्था है SGPC, उसने फिल्म को अप्रूवल दे दिया, उन्होंने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। ये बहुत अच्छा है कि बेसिकली देखिए जब एक एक्टर कर रहा है, कोई भी एक्टर किसी भी रिलीजन का, कल को वो पंडित का रोल भी कर सकते हैं, कल को वो किसी मौलवी का रोल भी कर सकते हैं, ज्यू का रोल भी कर सकते हैं, क्रिश्चियन का रोल भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह की जो ऑपोजिशन है वो हमारी छोटी होती हुई मानसिकता को दर्शाती है कि भाई हमारा रोल भी हमारे धर्म से कोई करेगा। मेरे को ये लगता है कि इससे आप अपने धर्म का खुद ही निरादर कर रहे हैं। दूसरी बात ये है, पर लेट्स से किसी को ये बहुत स्ट्रांगली लगता है, कोई ये ओपिनियन रखता है, हम उससे डिसएग्री कर सकते हैं। तो क्या वो अगर उसको फिर भी विरोध करना है तो उसे कैसे करना चाहिए? क्या उसको दंगे करने चाहिए? क्या तोड़फोड़ करनी चाहिए? वो क्या करेगा? डेमोक्रेटिक तरीका तो ये भी बोलेगा जी मैं ये फिल्म नहीं देखूंगा, और औरों को भी यही बोलेगा कि ये नहीं देखनी चाहिए। अगर एक बंदा जो एक बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड एक्टर है, बहुत ही फेमस एक्टर है, जिसका नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है और जिसको इंडिया से रिलेट किया जाता है, अगर वो एक्टर बोलता है विदाउट डूइंग एनी रिसर्च या कुछ खबरें या जो भी एक मीडिया इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा था या होगा, राइट, उसके बेसिस पे अगर वो बोलते हैं कि भाई हमारे घर में हम ये डिस्कशन करते हैं कि भाई अब तो हमें इंडिया सेफ नहीं लगता है, और जो लोग अपने देश को प्यार करते हैं, जिनको लगता है कि ये सच नहीं है, राइट, और ये देश को बदनाम करेगी ये बात, वो ये शायद ना ये भी चाहे ये भी ना कह रहे हो कि कोई षड्यंत्र है, पर वो ये कहे कि ये वाली बात बोल के आप देश को एक कदम पीछे लेके जाते हो। और अगर उन्होंने भी आमिर खान जी का विरोध करना है तो वो किस बेसिस पे करें? एक एक्टर का विरोध, उसका काम को आप बॉयकॉट करके ही कर सकते हैं। उसके अलावा तो बाकी सारे तरीके नॉन डेमोक्रेटिक है, राइट। आप ना तो आपको देखो किसी के वहां पे जाके पत्थरबाजी करनी चाहिए, ना गालियां निकालनी चाहिए, ना ही उसको धमकियां, जान से मारने की धमकियां देनी चाहिए। आप सबसे जो डेमोक्रेटिक तरीके से अगर एक कैंपेन कर सकते हो वो ये होना चाहिए कि भाई जो लोग हमारे भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं हम उनकी मूवी नहीं देखेंगे, राइट। मैं हालांकि बॉयकॉट वाला कल्चर वैसे ही गलत कल्चर है, ये कोई पॉजिटिव कल्चर नहीं है, पर अगर किसी को लगता है कि ये चीज नहीं करनी है, राइट, या अगर हमें कोई पर्सन जो बड़ा ऑब्वियसली कुछ गलत बोलता है, वो देश का अनादर करता है, राइट, कोई भी, तो हम उसका बॉयकॉट ही करना चाहिए ना। या और अगर वो लीगल चीजों से हटके कुछ ऐसी चीज कर रहा है तो उस पे लॉ उस पे एक्शन लेगा। हम तो बस यही कह सकते हैं कि ये आपत्तिजनक है और ये चीज नहीं होनी चाहिए, राइट। या हम आज के बाद जो कंपनी लेट्स से कि हमारे देश के अगेंस्ट कोई या लेट्स से किसी भी तरीके से हमारे देश के लॉस को तोड़ती है, वो कहती है कि भाई हम टैक्स नहीं भरेंगे, टैक्स का चोरी करते पकड़े जाते हैं, उस पर इंक्वायरी चल रही है, तो क्या कैंपेन नहीं चलनी चाहिए कि इन कंपनियों से सामान नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये देश का नुकसान कर रही है, देश को रिस्क में डाल रही हैं, राइट। वो हमारी जनता के पास ही पैसा जाना था ना। तो बॉयकॉट करना मतलब किसी का विरोध करना ये गलत नहीं है, राइट, पर बॉयकॉट का कल्चर नहीं बन जाना चाहिए। कहीं ना कहीं पे तो आपको विरोध करना है और डेमोक्रेटिक तरीके से करना है। आप धरने दे सकते हैं शांतिपूर्वक तरीके से, पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तोड़ सकते, आप किसी की जान नहीं ले सकते, राइट। आप बोल दो कि इन्होंने जस्ट बिकॉज मेरे धर्म का या मेरे देश का निरादर किया मैं इसका गला काट दूंगा, आप ये सब नहीं कर सकते, राइट। वो हमारी जो वैल्यूज हैं इस कंट्री की, जो भारत की वैल्यूज हैं, जो हमारी इंडिक वैल्यूज हैं, उसमें वो है ही नहीं, राइट। तो मेरे को ये लगता है कि जब हम ही लोग जो हम मीडिया में बैठे हैं, जब हम किसी के विरोध करने के तरीके को जो शांतिपूर्वक है, डेमोक्रेटिक है, और हम बोले कि ये बंदा छोटी सोच रखता है, ये कट्टर सोच रखता है, वो मेरे को लगता है उस विरोध का जो एक शांतिपूर्वक विरोध है उसका भी उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का अनादर है, बिल्कुल, राइट। विरोध होगा और लोग एक दूसरे से डिसएग्री कर सकते हैं, लोग ये बोल सकते हैं कि बिकॉज हमें ये लगता है कि ये भारत के हित में नहीं है या इस कम्युनिटी के हित में नहीं है तो हम इसका विरोध करते हैं और हम इनकी फिल्म नहीं देखेंगे, ये उनका हक बनता है। पर ये कल्चर बन जाना कि आप बायकॉट करते रहो, वो भी गलत है। इस तरह के अदाकारों को भी, सेलिब्रिटीज को भी, जो बहुत लोग जिनको फॉलो करते हैं, जिनको करोड़ों लोग जानते हैं और उनको फॉलो करते हैं, उनको भी जिम्मेदारी के साथ थोड़ा अपने बयान देने चाहिए, सोच समझकर। देखो, आप अगर पब्लिक फिगर हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जो जनता की आवाज़ है आप उठाओ, राइट। पर जनता की आवाज़ उठाने की आड़ में
आप एक ऐसी आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट कर दो जो कम्युनिटीज को तोड़े, जो देश के अंदर भय का माहौल क्रिएट करे, जो देश की इमेज पूरी दुनिया में खराब करे, और वो भी बिना किसी सबूत और रिसर्च के। जस्ट बिकॉज एक दिन घर पे बैठ के आपने ये डिस्कशन कर ली, उसको पब्लिकली डिस्कस करना, वो किसी को गलती लग सकती है, किसी को भय लग सकता है, राइट? पर जब एक ऐसी हस्ती ऐसी चीजें बोलते हैं, वो देश की इमेज का सवाल बन जाता है। और अगर उन्होंने, मेरे को लगता है तब तो जो गवर्नमेंट चेंज हुई थी उसको 1 ही साल हुआ था, राइट? और ये बात तो दूसरे दिन से एक भय का माहौल क्रिएट करना शुरू कर दिया गया था। तो मेरे को लगता है कि एक बैलेंस के साथ बात करना और नेशनलिस्ट होना कोई एक अच्छी बात ही है। सर, पाकिस्तान के जनरल बाजवा, उनके चर्चे पहले भी भारत में हुए हैं। एक जफ्फी के चर्चे थे उनके, जो सिद्धू साहब से जफ्फी उन्होंने डाली थी, और सिद्धू साहब काफ़ी चर्चा में रहे थे, काफ़ी कंट्रोवर्सीज में रहे थे। तो वो यूएई में जा रहे हैं और कई और देशों में जा रहे हैं, फंड्स की डिमांड कर रहे हैं, पर माना ये जाना चाहिए कि देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जाते हैं। अगर आपको ज़रूरत है, अगर भारत को ज़रूरत है तो भारत के प्राइम मिनिस्टर बात करेंगे, श्रीलंका को ज़रूरत है तो उनके प्रेसिडेंट बात करते हैं। तो क्या ये आर्मी के जनरल को जाना वाजिब है? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, राइट? आप एक बिजनेस डील करने जा रहे हैं, आप एक बहुत बड़ी कंपनी में गए जी, राइट? वहाँ पे आपको एक बहुत ही समझदार और इंटेलिजेंट, बहुत ही समझदार, बड़े अच्छे तरीके से अपना काम करने वाला एक ऑफिस बॉय पानी पिलाने आया जी। उसने बहुत अच्छे तरीके से अदब से आपसे सारी चीज़ें पूछी जी। तो क्या आप उससे वो बिजनेस डील करनी शुरू कर देंगे? बिल्कुल। मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि उनके प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया और यूएई जा चुके हैं जी, और उनसे किसी ने बात नहीं की, किसी ने उनको कोई ठोस जवाब नहीं दिया जी। अब आप उसी से डील करेंगे जिसके हाथ में पावर है जी। आप उस कंपनी के एमडी या सीईओ से बात करेंगे जी। तो पाकिस्तान को कौन चलाता है? आपको क्या लगता है उनके प्राइम मिनिस्टर चला रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तान को उनके जनरल चलाते हैं जी। तो जब वो जनरल साहब जाएंगे, क्योंकि बाद में पैसे वापस कैसे आएंगे, क्या पॉलिसी बनेगी, क्या बेनिफिट दिए जा सकते हैं, ये उनके प्राइम मिनिस्टर डिसाइड ही नहीं कर सकते जी। जब एक डील होती है तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट और 100 नेगोशिएशंस होती हैं जी, कि इसको कैसे दिया जाएगा, क्या रिटर्न्स दिए जाएंगे, हमें क्या सिक्योरिटीज दी जाएंगी जी। जब प्राइम मिनिस्टर के हाथ में कुछ नहीं है, उनको प्राइम मिनिस्टर ही बाजवा साहब ने लगाया है, तो आपको क्या लगता है दूसरे जो सीनियर लेवल के जो जो यूएई के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हैं या जो शेख हैं उनके, या सऊदी अरेबिया की जो रॉयल फैमिली है, उनको क्या पता नहीं है कि वहां पे पावर किसके हाथ में है जी? तो वो बिल्कुल सही बंदे से ही बात कर रहे हैं, क्योंकि एंड में अगर उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स देने हैं तो उसकी रिकवरी तो होगी ना जी। अब शहबाज शरीफ जी से वो क्या मांगेंगे? वो बोलेंगे जी मैं तो खुद अपने बिल्स के अप्रूवल के लिए बाजवा साहब के ऑफिस के चक्कर लगा रहा हूँ जी। तो ये फैक्ट ऑफ द मैटर है। तो बाजवा साहब की जादू की झप्पी काम आ सकती है वहां पे भी। देखो, अगर एक्चुअली पाकिस्तान को फंड देना पूरी दुनिया की मजबूरी है जी, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को एज अ वो क्या बोलते हैं ना, बनाना रिपब्लिक बना दिया है। उसकी जो पब्लिक ऑफिसेस तो उसको पर्सनल यूज या ब्लैक ऑपरेशंस के लिए यूज किया गया। उस धरती को दूसरे देशों में टेररिज्म एक्सपोर्ट करने के लिए या दूसरे देशों में अटैक करने के लिए या ऐसे जितने भी नेगेटिव चीजों के लिए पाकिस्तान ने अपनी जमीन मुहैया कराई है, अपने आर्मी मैन मुहैया कराए हैं, अपने रिसोर्सेज मुहैया कराए हैं। तो पाकिस्तान को मैनेज, और ऊपर से पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, तो पाकिस्तान का फाइनेंशियली लिक्विडिटी या वायबिलिटी मेंटेन करना इस वक्त इस दुनिया की मजबूरी है, वरना कोई पाकिस्तान को आज डंडे से भी छूना नहीं चाहता जी। पाकिस्तान इकोनॉमिकली इतना वीक हो चुका है, पाकिस्तान के अंदर इतनी रिलीजियस बिगोटरी हो गई है, माइनॉरिटीज की लाइफ बिल्कुल सेफ नहीं है, वो जल्दी ही कुछ टुकड़ों में बंटने वाला है जी। तो आज पाकिस्तान को कोई मजबूरी से ही पैसे दे रहे हैं, क्योंकि उनके कुछ अपने असेट्स या उनके कुछ अपने ब्लैक ऑपरेशंस पाकिस्तान के थ्रू रन हो रहे होंगे जी। सर, इसी के साथ चाइना का जो डेट ट्रैप है उसकी बात हम करते रहे हैं। श्रीलंका के साथ जो हुआ पूरी दुनिया में देखा, वही डेट ट्रैप वो पाकिस्तान पर भी है। पाकिस्तान उस डेट ट्रैप के कारण ही सिचुएशन में पहुंचा हुआ है जी। और सिर्फ पाकिस्तान ने सिर्फ चाइना से नहीं, पूरी दुनिया से यही कर रखा है। आज वो जो भी लोन ले रहे हैं लोग, मैंने जैसे आपको बताया कि लोग इसलिए लोन दे रहे हैं, उनको कोई पैसा वापस आने की उम्मीद नहीं है जी। पाकिस्तान तो ब्रेक डाउन होने वाला है
जी। उनको ये करना है कि ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये गलत हाथों में ना चले जाएं, या जब तक जो भी उनके डीप असेट्स वहां पे है उनको कैसे मैनेज करना है, जी। या उनकी बेसिस को कैसे अपने मिलिट्री ऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस के लिए कैसे यूज करना है। जी। तो चाइना ने भी वहां पे अपने कई बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए हैं। कुछ और रिजल्ट सोचे थे, हालांकि वो रिजल्ट नहीं आए, क्योंकि पाकिस्तान में करप्शन कोर में बसी हुई है। जी। तो उसके कारण उनके सारे प्लान्स फेल हो गए हैं, और इसका चाइना पे भी अब असर हो रहा है। जी। क्योंकि जो उनकी वो जो पूरा जो हाईवे उन्होंने कनेक्ट करने के लिए बनाया था, चाइना में हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से अपना ऑयल या अपने चीजें लेके जा पाए। जी। क्योंकि इंडिया का क्लेम है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे। जी। और सूनर और लेटर अगर वो इंटीग्रेशन होती है तो वो पूरा का पूरा जो हाईवे है वो गैप आ जाएगा, चाइना डायरेक्टली उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। जी, शुक्रिया सर। इस तरह के इनसाइट्स और करंट अफेयर्स के लिए देखते रहिए इनसाइट्स विद विशाल सूद।